ये हो सकता है हो सकता है बट दैट इज आफ्टर हो सकता है आपका समटाइम अंडर ये तो So all the reversible reactions in the beginning are in equilibrium. नो नॉट All the equilibrium reactions beginning in they are reversible. All the equilibrium reactions initially they were reversible. All the reversible reactions right from the beginning are at equilibrium. No. All the equilibrium reactions originally initially were reversible. yes Irreversible. नहीं Reversible. because in irreversible reaction there's only forward reaction no backward तो बैलेंस आउट करने के लिए दूसरा रिएक्शन बराबर थैंक यू चिट डाउन यस लिक्विड क्या चैप्टर नाउ है chemical एक्सो एंडो डिस्टिंग्विश oh okay so endothermic energy is absorbed ही वॉल it is evolved यस absorb ही वॉल तो एक्सो में क्या था भाई एक्सो में एग्जिट अच्छा नहीं सॉरी it is energy is retrieved एक्सो का लेटर एग्जिट मतलब एक्सो हां एंडो मतलब एंटर कर रहा है क्या एंटर कर रहा है एनर्जी या फिर हीट है ना तो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विद लेसर एनर्जी इन विच केस in exothermic and एक्सो दैट्स इट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विद ग्रेटर स्टेबिलिटी इन विच केस वो भी एक्सो दो तो एक्सो नहीं so yeah energy स्टिक टू इट ठीक विच इज फेवर द हाई टेंपरेचर एंडो ठीक एंडो में हीट अब्सॉर्ब हो रहा है बस बस yes reversible irreversible which will proceed in a single direction which will never go to completion which will always stop irreversible equilibrium can be established in which case which is denoted by double arrows half arrows or full arrows half arrows दिखाया तो thank you good excellent distinguish energy is called energy is absorbed in ecto and product is formed with lesser energy and greater stability in exothermic and higher energy and lesser stability in endothermic delta is negative in endothermic delta H मतलब क्या okay well HP minus HR या HR minus HP HP minus product minus reaction final minus initial ठीक है right minus left left minus right left right बना ठीक आगे favor the low temperature reset yeah when you are talking about exothermic reaction is favored by low temperature because that itself raises the temperature. To balance it out, you will have to decrease. Endo में नहीं, तो बाहर से temperature कमी कर, it absorbs heat from the surrounding. तो बाहर से temperature कमी के ना तुम ही वालो. That means it is favored by high temperature. ठीक है, thank you. Please sit. Yeah, have you all understood this much? Yes, sir. 2H2, वैसे होता है 2H2, yes 2H2 plus O2 is supposed to be an endothermic exothermic reaction. Simple water gives hydrogen and oxygen. Endo? How? Dissociation, kind of, है ना? Bonds are to be broken, new bonds are to be formed, तो सब ठीक है. What happens? उल्टा reaction होता है. 2H2 plus O2 gives 2H2. Can we call this combustion of hydrogen? No? Yeah. Combustion is exothermic. तो exothermic reaction. तो exothermic अगर forward है तो backward मैंने बताया था इसलिए endothermic. Pay attention. Now, acid reacts with a base to form salt and water. ठीक है? ऐकली reaction
There's something called strong acids, something called weak acids. Strong bases, weak bases. 4 strong acids आपण घेतले. Which are they? HNO3. सांगितलं ना? नाही बाबा, weak आहे ते कार्बोनिक ऍसिड. नायट्रिक बोलला ना? HF नाही घेतला. HF मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग खूप स्ट्रॉंग आहे, डिसोसिएशनला स्कोपच नाही मिळत. HI स्ट्रॉंग आहे ना? HI डिपेंड करतं त्याच्यामध्ये परत जे डिसोसिएशनचं एक्सटेंड आहे, नॉट 100%. पे अटेन्शन या. बेसिकली डेली ह्याच्यामध्ये आपण जे 4 स्ट्रॉंग ऍसिड घेतो, दे आर HClO4, which you missed out. That is called perfluoric acid. Then your HNO3, H2SO4. H2SO4 is the second strongest acid. Then comes HCl. Then comes HNO3. ठीक है? Now when we are dealing with this, ठीक है? HI though dissociate, it immediately gets back to HI. So H plus and I minus again reconcile so as to form H plus कसं मिळालं? आपला स्ट्रॉंग ऍसिड्सचा कन्सर्न काय होता? स्ट्रॉंग ऍसिड्स आर दोज विच अंडरगो 100% डिसोसिएशन. आयनिक झाला? आयनिक इक्विलिब्रियम चालू आहे? स्टार्ट आहे ना? हाँ, ठीक है. पे अटेंशन नाउ. तो एक्सो एंड एंडो, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, द बेसिक अपने चैप्टर का जो कोर कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाट वी डिस्कस. Two types of equilibria are very common, physical and chemical. Even though the chapter ka name is chemical equilibrium, but physical equilibrium also we need to consider. Physical equilibrium, it's nothing but equilibrium which is established between two different phases of the same substance. Example, solid liquid, liquid gas, solid and gas. Sublimation होता ना? Solid liquid ला we call fusion. ठीक है? Liquid and gas, it's called if we heat. If it happens on its own, it's called evaporation. But ठीक है, vapors में है. So these are some of the processes which we consider. So repeat, equilibrium established, बोलो. आवाज है मुझे नहीं बोला. Equilibrium established between two different phases of the same substance. Repeat. Equilibrium established between two phases of the same substance. Equilibrium established two phases of the same substance. Phases means physical states we are referring to. Repeat. Equilibrium established between two phases of the same substance. Repeat. Equilibrium established between two different phases of the same substance. Perfect. Let's quote an example now. Evaporation of water. Got it? Yes. Suppose this is a container which contains water. Molecules from the surface of water, they have a tendency to escape. Escape म्हणजे काय आलं? Vapor side. Where will this vapor go? They will diffuse into the atmosphere. Will they come back? मला ते वॉटर सायकलचं स्टोरी नका सांगू. क्लाउड्स बनतील, पाऊस पडेल, कंटेनर घेऊन फिरणार का त्याच्या खाली? नाही ना. So basically what happens, they evaporate, they make, खतम, that's it. कपडे वाळत घालता तुम्ही, ओले असतात आधी, मग वाळतात, मग परत ओले होतात का? मग रिव्हर्सिबल झालीच नाही ना ही. That's what I'm telling. It's a one-way process. So if it is a one-way process, it's reversible ki irreversible? Irreversible. Now what happens when I close this stuff? Equilibrium established. Evaporation will happen or not? Yes. Will vapors form? Yes. Will they get accumulated above the liquid surface? Yes. But inside the container? Yes. Vapor म्हणजे solid liquid की gas? Gas. Vapor आणि gas मध्ये फरक काय आहे? Gas can be any, but vapors are water vapors. Kinetic. काय kinetic? Vapor आणि gas मध्ये काय kinetic energy? Gaseous state of a liquid, it's called vapor. Water vapor असतं. Nitrogen gas असतो. Nitrogen vapor नहीं म्हणत आपण. तो inherently जो पहले से liquid है, उसको जब आप गैस बनाओगे, we call it vapor. कळलं? बाकी कशाला काही म्हणा, काय फरक नाही पडत. Because काय काय? आपण वेपरला पण आकार बदलला. आपण रूम टेम्परेचरचा रेफरन्स देतो बाय 298 केल्विन स्टँडर्ड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर.
कारण आपण रिॲक्शनमध्ये पण H2 च्या खाली गॅस लिहितो. डिपेंड करतं, लिक्विड पण लिहितो. कंबशन रिॲक्शन मिथेनचं जर तू घेतलं तर CH4+2O2 CO2+2H2 मध्ये H2 च्या खाली L दिला आहे. दॅट डिपेंड कुठच्या टेम्परेचरवर ऑपरेट करतात. म्हणून आपण स्टँडर्ड टेम्परेचर फिक्स केलं ना 298. मग आपण जेव्हा रेफरन्स स्टेट घेतो किंवा कुठची स्टेट घेतो, इट इज कन्सिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू 298 रूम टेम्परेचर. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड. कैसे? Vapors are in the gaseous state. Gas molecules are in the state of rapid random motion. During motion, they collide with each other as well as with the walls of the container. अपने इस केस में free liquid surface as well. जो बीच में आएगा सबसे टकराएगा. कौन? गैस. ठीक है. अच्छा, ये गैस मॉलिक्यूल्स है या तो वेपर है. वेपर्स किसका है? ये वाटर. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड के एस्टैब्लिशमेंट का चांसेस है कि नहीं है? तो दोज हु लूज आउट देयर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिशन, ठीक है, then some of them might just get bound. They form aggregate with other molecules. Aggregation म्हणजे काय? Collection, group. ठीक है. So it's like एक molecule दूसरे से group up हो, so they form a cluster या group of two molecules. उससे और एक molecule जुड़ जाएगा because इसमें भी OH OH दोनों में आ जाता है. तो chances of getting accumulated rises, increases. Yes. तो 2 से 3 जुड़े, 3 से 30 जुड़े, 30 से 40 जुड़े, तो what does happen like, you know, इसमें उसका जो साइज है एग्रीगेशन का वो बढ़ते गया, कम होते गया, बढ़ते गया. They become heavier कि lighter, so they will float over, they will sink down, so they sink, तो vapor become liquid, इसको कहते हैं condensation. ठीक है. Are you unwell? Feeling dizzy, drowsy, lazy? No? Okay. Want to go out for a while? Catch some fresh breath. Don't do this then. So, evaporation is carried out in a closed container or open container? Closed container. Vapor molecules will get accumulated where? Above the liquid surface, but inside the container. Molecules are in the state of rapid random motion. They keep colliding, bombardment होते रहेंगे. Some of them fall back. Fall back means this reverse process is called condensation. तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हो रहा है या एक प्रोसेस हो रहा है? कौन सा? इवैपोरेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या अपवर्ड एंड डाउनवर्ड? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. बराबर. अच्छा, फॉरवर्ड है कौन सा? इवैपोरेशन. डू यू नो इवैपोरेशन? इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है. एवरी लिक्विड मॉलिक्यूल हैज अ टेंडेंसी टू इवैपोरेट मोर और लेस. इथाइल एसीटेट इज वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड नोन टू अस. इट्स एन एस्टर. इस तरह के लिए ना. हाँ. और ईथर्स, पेट्रोल, ये भी हाईली वोलेटाइल होता है. नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन, वो भी हाईली वोलेटाइल होता है. दैट्स वी हैव टू फॉर्क इट वंस वी हैव यूज्ड इट. कहते हैं व्हाट हैपेंस नाउ कि यहाँ पे इवैपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है. आफ्टर व्हाइल रेट ऑफ इवैपोरेशन एंड कंडेंसेशन दे बोथ बिकम इक्वल. यहाँ पे ठीक है. इवैपोरेशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड. हाउ वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल इट इज. इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया. कपडे वाळत टाकताना पसरवून टाकतात की क्रम्बल करून टाकतात का? काय होतं? व्हेरी गुड. टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर ते डिपेंड करतात का? रेट ऑफ इवॅपोरेशन नाही. पावसात खूप लवकर वाळतात कपडे तुमचे, थंडीमध्ये लवकर नाही. सराउंडिंग टेम्परेचर इज मस्ट बिकॉज रेट ऑफ इवैपोरेशन टेक्निकली उसके ऊपर डिपेंड करता है. समझा? इवैपोरेशन एज एब्सोल्युटली डिपेंड नाही करत ना. 3 म्हणून फॅक्टर्स सांगितले ना. 3ही एकत्र काम करतात. ह्युमिडिटी पण येते याच्यात. ते पण एक्सटर्नल फॅक्टर जातात. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, दॅट्स व्हाय व्हेन द एटमॉस्फियर इज ह्युमिड इट डजंट अकॉमोडेट मोर वेपर्स एनिमल. जर तू प्रेशर लो केलंस, सराउंडिंग प्रेशर, इवॅपोरेशन फास्ट होतं. त्याला व्हॅक्यूम इवॅपोरेशन म्हणतात. सॉल्ट जेव्हा आपण प्युरिफाय करवतो सी वॉटर मधून, यू थिंक सी वॉटर इज अल्ट्रा प्युअर? काय काय फिल्ट, डस्ट, डर्ट सगळं काय काय असतं त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एडिबल सबस्टन्स हवा आहे, सो इट हॅज टू बी प्युअर. त्याच्यामध्ये तुम्ही पोटॅशियम आयोडेट वगैरे नंतर टाकाल, त्याला आयोडाइज्ड वगैरे कराल, ती नंतरची गोष्ट आहे. आधी प्युअर सॉल्ट घ्या. आता प्युअर सॉल्ट तुम्ही जेव्हा इव्हॅपोरेशनने गॅदर करता, सॉल्ट पॅन बघितलं तुम्ही कधी? समुद्र बघितलाय? ठीक है. तो बेसिकली वहां पे लाइक इवैपोरेशन होगा सॉल्ट पैन से, तो खाली क्या मिलेगा? सॉल्ट. वो प्योर तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो उसको प्यूरिफाई करते हैं. प्यूरिफिकेशन में वी गेट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट. क्या होगा सैचुरेटेड? मतलब वाटर कंटेंट तो होगा ही उसमें, उससे मुझे फ्री फ्लोइंग सॉल्ट चाहिए एकदम ड्राई फॉर्म. तो कैसे करेंगे? दैट्स कॉल्ड वैक्यूम इवैपोरेशन. तो ऊपर वैक्यूम क्रिएट करते हैं. ठीक है.
थोड़ा लो प्रेशर जोन एक्चुअली टेक्निकली, तो जो वाटर वेपर्स है टू फिल इन दैट वॉइड वो इमीडिएट निकल जाते हैं, तो अपना जो सॉल्ट है उसको छोड़ देते हैं, इट बिकम्स ड्राई। हम लोग धूप में सूखने के लिए डालेंगे तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, बिकॉज वो सॉल्ट है ना हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो वाटर छोड़ तो देगा ड्राइंग में, बट गिवन अ चांस जरा भी ह्यूमिडिटी मिला तो वो वापस अब्सॉर्ब भी कर लेगा, क्या फायदा। इसमें डायपोल आयन इंटरैक्शन एस्टैब्लिश हो जाते हैं, रिमेंबर स्टेट्स ऑफ मैटर। ये समझा सबको पक्का? अच्छा, इसके लिए ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ये जो पैरेलल रेट है, पैरेलल रेट मतलब बेसिकली पैरेलल लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का रेट डिपेंड्स अपॉन विच एवर द फैक्टर्स, दोस फैक्टर्स हैव बीन केप्ट कांस्टेंट हियर। मैं ना तो टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, ना तो वाटर चेंज कर रहा हूँ, सरफेस एरिया सिलेंडर का जो है वो फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। So evaporation का rate always is constant here. But what happens if you keep evaporating water, the vapor molecules will keep getting accumulated. कहाँ पे? Surface of the liquid. Accumulation जितना ज़्यादा होगा उतना crowd ज़्यादा होगा तो collision frequency बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो collisions बढ़ेंगे तो chances of molecules getting condensed वो भी बढ़ेगा। इसलिए condensation का rate slowly steadily बढ़ते चलता है। ठीक है, and once they catch up with each other, we say equilibrium is established. पहला का, that's what the equilibrium graph is. ये थोड़ा अलग ग्राफ, हम लोग ने पहले जो ग्राफ दिखाया था उसमें ऐसे था और यहाँ पे मीट हो रहे थे। This was your rate of forward reaction, this was your rate of backward reaction. I hope याद है आपको। और ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, बट ये पैरेलल नहीं था। That was the chemical equilibrium. ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ हो सकता है फॉर दिस क्वेश्चन, समझाइए। ठीक, प्लीज राइट डाउन फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर इवेपोरेशन if we like keep increasing the temperature या कुछ तो उसका भी ग्राफ, तो आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो ना सर। पर इक्विलिब्रियम जब कभी होता है तो फैक्टर्स शुड बी केप्ट कांस्टेंट, नहीं तो डिस्टर्ब होते रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो, किसी चीज को मेल्ट कर रहा है, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इक्विलिब्रियम में लिक्विड आल्सो विल गेट कन्वर्टेड, बट अगर आप इसे हीट करोगे तो यू हैव डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एंड यू हैव फेवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कैसा है? तो ग्राफ ही गलत जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, equilibrium established physical equilibrium established between two different phases. Equilibrium established between two different phases of the same substance. ये आपने लर्न किया। नेक्स्ट टाइम पे लिखो एग्जाम्पल, नहीं सर सेकेंड पॉइंट लिखो इसका। इट इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। गाइस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा? There is a difference किस चीज का? तो जब reactants and the products इनका फिजिकल स्टेट सेम होता है तो वी कॉल इट होमोजीनियस, नहीं होगा तो हेट्रोजीनियस। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में ही लिखा है टू डिफरेंट फेजेस, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, कैसे होगा? हेट्रोजीनियस। थर्ड पॉइंट वुड बी एग्जांपल, H2O, उसके नीचे L लिख दो, लिक्विड लिखा। अभी आप लोग इक्विलिब्रियम का साइन डालो, हाफ एरो
सबसे पहले लिखना H2O गैस, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट करना। दिस इज इवेपोरेशन, दिस इज कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हो गया? Now I am teaching you two answers, या two concepts. एक chemical equilibrium, and दूसरा characteristics of equilibrium. ये दोनों आंसर्स आप लोग खुद से लिखने वाले हो. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट, जस्ट बी अलर्ट. सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हो. Consider a reversible reaction are reversible with P. Because equilibrium establish होने से पहले वो reversible है. ठीक है? R मतलब reactant, P मतलब product. There is a law known as law of mass action. This law states that reaction का rate depends upon the concentration of the starting material. Logically, आप ज्यादा concentrated लोगे कोई चीज तो रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा. अब मुझे बोलो यहाँ पे दो रिएक्शन, एक फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है. फॉरवर्ड के रेट को मैं लिख रहा हूँ RF, तो बैकवर्ड को क्या लिखूंगा? RB. प्रोपोर्शनलिटी. अब मुझे बोलो फॉरवर्ड का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? कैपिटल R या कैपिटल P? R क्या था? रिएक्टेंट. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा. वेरी गुड. स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज मोलार कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास. हम लोग इसमें एक्टिव मास ये टर्म ज्यादा प्रेफर करते हैं. आप मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज N अपॉन V इन लीटर्स, वेर N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, V का मतलब है वॉल्यूम. मोल पर लीटर को मोलार कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी कहते हैं, है ना? तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन है एक्टिव मास. दूसरा टर्म इसका लिख लेता हूँ. बिकॉज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मोलैरिटी जब आप लोग करते हो तो मोलैरिटी हम लोग ने कैपिटल M से लिखा है. ठीक है? एक्टिव मास वहां पे ज्यादा यूज नहीं किया था वर्ड. दैट्स कॉल्ड एक्टिव मास. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव मास या फिर मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R. तो बैकवर्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? T लिख देते. हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. ये दोनों इक्वल है शुरू में नहीं, तो RF और RB शुरू में इक्वल थे इनिशियली. किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? ऑब्वियसली वी स्टार्ट ऑफ विद द रिएक्टेंट ओनली. तो आई कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मैक्सिमम. जितना भी आप लेना चाहते हो सिस्टम में
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी मिनिमम, वो 0 होगा, ठीक है। इनिशियली मतलब द रिएक्शन जस्ट अबाउट टू सेट ऑफ, तो ऑब्वियसली रिएक्शन अगर शुरू ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0। मैंने वर्ड क्या यूज किया, मिनिमम। ये क्या था, मैक्सिमम। अब इनिशियली मतलब शुरू के फेज में अगर R ज्यादा है तो RF हाई होगा या लो होगा, हाई। Therefore RF would be very high in the beginning, RB would be very low in the beginning. But ये सिचुएशन ऑल्टर होगा जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स, concentration of the reactant goes on decreasing, concentration of the product goes on increasing, therefore RF goes on decreasing, RB goes on increasing. एक चीज कम हुई, एक चीज बढ़ी, किसी एक स्टेज पे दोनों बिकॉज वो रिवर्सिबल नेचर के थे। अगर वो रिवर्सिबल नेचर के नहीं होते तो ये डिक्रीज होते जाता 0 होता, और ये गलत, इरिवर्सिबल है तो बैक तो है ही नहीं ना, लॉजिक। एनीवे, तो रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, RF गोज ऑन डिक्रीजिंग, RB बढ़ा बिकॉज प्रोडक्ट बढ़ा। किसी एक स्टेज पे RF becomes equal to RB. So what is established? Now the reaction has to be shown in a different way. R and T. फर्क पड़ा? This is equilibrium. अब इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश्ड होगा? तो कॉमन टर्म्स में हम लोग बोलेंगे थोड़ी देर के बाद। कितने देर के बाद? पता नहीं। That depends upon nature of the reaction. रिएक्शन कितना स्लो है या फास्ट है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? एक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ द बोथ द स्पीशीज। ठीक है, कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी से रिएक्ट कर लेगा। इसका कॉमन ग्राफ ये मैं सब वाइप ऑफ करने वाला हूँ बाद में। यू विल बी राइटिंग दिस थिंग्स ऑन योर ओन। ये कौन सा एक्सिस है? y। ये कौन सा है? x। ये ओरिजिन। यहाँ पे लेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्या लेते हैं हमेशा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मिस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या था? एनीवन? प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये किसका रेट है? RF। ये किसका रेट है? एंड हियर RF बिकम्स इक्वल टू RB। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन पण इक्वल असेल असं नाही, बिलकुल नाही। इनफॅक्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन रिएक्टंटचं आणि प्रॉडक्टचं सेम नसतं। ते केव्हा होईल सांगतो, एक स्पेशल केस जिकडे R गिव्स P आहे, त्या पण एकच रिएक्टंट आणि एकच प्रॉडक्ट, ह्याचं 50% कंझ्युम झालं, त्याचं 50% फॉर्म होणार। आय मीन टू से सपोज 2 मोलार घेतलं कॉन्सन्ट्रेशन, इनिशियली 0, त्याचं 50 गेलं म्हणजे 1 राहिलं, ते 50 कन्वर्ट झालं कशात? त्याचा 1 गेला, त्याचा 1 मोलार आला, त्याच्याकडे किती राहिला? त्याच्याकडे किती आला? 1 1। मग तो कॅन वी गॅरंटी हमेशा 50% ही रिएक्शन होगा? नाही ना, डिपेंड्स। एक्झॅक्टली। इनफॅक्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मध्ये रिएक्टंट आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम नसतं, असू शकतं। दिस वन ऑफ द केस मैथमेटिकल है ना। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझा? अब 2 ग्राफ्स और देता हूं मैं अंडर द टाइटल नोट। These are the random values of rate of the reaction R
कोणाला माहिती आहे रेट ऑफ द रिॲक्शन कुठच्या युनिटमध्ये एक्सप्रेस करतो आपण? स्पीड ऑफ द रिॲक्शन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन विच युनिट्स? मोल्स की मोलार? मोलार. कंसिडरिंग कॉन्सेंट्रेशन या ओनली द अमाउंट? कॉन्सेंट्रेशन इज द यूनिट का है, मोलार. रेट क्या होता है? रेट इज नथिंग बट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन इन यूनिट टाइम. चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन में यूनिट होगा कैपिटल M, मोलार. यूनिट टाइम कैन बी सेकंड, मिनिट, आवर, डिपेंड करता है ना. तो इट्स मोलार पर टाइम असं आपण म्हणतो. बट लेट इट बी. दिस इज सपोज 2 मोलार पर सेकंड, 10 मोलार पर सेकंड. ये रैंडम नंबर्स है. सेम पॉइंट है. 2, 4, 6, 8, 10. This is as usual progress of the reaction, also known as reaction coordinate. ये rate of the reaction है. Both these graphs, they represent equilibrium reaction. This is RF getting converted into, catching up with RB, and this is again RF and RB getting equal. And आपण म्हणूया point of equilibrium, which is established suppose after 15 seconds. परत मी सांगितलं रैंडम नंबर, तुम्हाला 10 सेकंड हवे 10, तुम्हाला काही फरक नाही. Here, यहाँ पर भी suppose this is established after 10 seconds. Okay? तो दोनों reactions के equilibrium 10 seconds में establish. किसी के 100 seconds में होंगे तो बोलने का slow है करके, किसी का 5 सेकंड में होगा तो relatively fast है. Slow, fast, relative terms है. Don't bother. Interesting क्या है देखो, RF का 15 seconds में जो concentration change हुआ, rate change हुआ, वो 10 से लेके 8 हुआ. 2 units से change हुआ in 15 seconds. बट उसी वक्त प्रोडक्ट जो था उसके लिए जो RB था वो 0 से लेके 8 तक था. तो इन 15 सेकेंड्स ड्रास्टिक चेंज किसमें हुआ? RB. एंड RB डिपेंड्स अपॉन, मतलब प्रोडक्ट में ड्रास्टिक चेंज हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट इज ज्यादा एक्टिव, ठीक है, कंपेयर्ड टू द रिएक्टेंट. तो यहाँ पे प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड टू ऑब्वियसली किससे? रिएक्टेंट से, और लेस स्टेबल. इंटरप्रिटेशन समझा इसका? यहाँ पे उल्टा आएगा. कैसे देखो, RF ड्रास्टिकली चेंज हुआ. अब RF डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, ठीक है, तो फिर क्या आएगा बोलो? वैसे बोल देते हैं, ठीक है. बेसिकली ये रिएक्टेंट के ऊपर, तो आई कैन से रिएक्टेंट इज मोर रिएक्टिव. और बोलो लेस स्टेबल. अब ये प्रोडक्ट के लिए उल्टा लिख सकते हो आप लोग, ऐसे ही घुमा फिरा के ट्विस्ट करके दे आस्क MCQs. ठीक है, ये समझा है? यस जी. This I am trying to explain chemical equilibrium. R क्या है? B क्या है? Now law of mass action क्या कहता है? Law of mass action कहता है कि rate of ये will be directed. रेट किसका? RF मतलब इन जनरल रेट रिएक्शन का. RF एंड RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. RF किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की रिएक्टेंट. क्यों? वो स्टार्टिंग मटेरियल. और RB किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियली रिएक्टेंट ज्यादा होगा या कम होगा? इनिशियली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा? तो RF इनिशियली ज्यादा होगा या कम? RF इनिशियली ज्यादा होगा. और RB रिएक्शन प्रोसीड हुआ, कौन कम होते जाएगा, कौन बढ़ते जाएगा? RF बढ़ते जाएगा, कम होगा. सॉरी, RF मतलब इसका है ना रिएक्टेंट का प्रोडक्ट. RF रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. फॉरवर्ड RF फॉरवर्ड रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है. बैकवर्ड प्रोडक्ट के ऊपर. हाँ. बराबर की बोला है. एक्नॉलेजमेंट. आगे जैसे जैसे
जैसे जैसे रिएक्शन जाएगा वैसे वैसे जिसका जो भी रिएक्टेंट पे बेस था मतलब RF जो रिएक्टेंट पे ये है वो कम होते जाएगा whereas RB इंक्रीज होते जाएगा।